Mukhopadhyay ki Awaaz, which was written in 1997, into Maithili. I was looking into Paul Brass's work, which is Language, Religion and Politics in North India, where he takes up three different studies, three different spaces, cultural spaces. One is the space of Urdu speech community, and second is the space of Punjabi speech community, and the third is the space of Maithili speech community. And when he looks at Maithili, he also recalls that in 1955-56 there was a great agitation when the State Reorganization Commission started working for a separate Mithilaak state. Obviously, this was not on the agenda of the Congress party, and therefore there was a lot of pressure from the then rulers in Delhi to see that these protests are subdued and they are not something which should be encouraged. Recall that this is also the state when we had movements for the Brihan Maharashtra, for the identity formation of Marathi language, literature, culture, and a separate state for Maharashtra. This is something which was also seen in the international arena by Prabodh Narayan Singh when he looked at the Pakhtunistan movement, and we had this Shimanto Gandhi, Khan Abdul Ghaffar Khan, who was leading a movement for the separatist state, politics, language and identity of the Pakhtuns, carving out a separate identity from among Afghanistan and Pakistan. And he was comparing these two and then bringing these experiences into the formation of Mithilaak state. And that was a time when, on behalf of the All India Mithilaak Sangh, he had drafted a resolution and submitted to the State Reorganization Commission, where in fact in one of the editorials here in July 56 and May 56, I find that he has given very interesting statements, and he was also telling those people who were questioning the integrity and the intellection and sensibility of these people. And he said, Simant Gandhi san tyagi, anubhavi, और आजन्म व्रति व्यक्ति तथा श्री देशमुख सन योग्य विद्वान उच्च पदस्थ व्यक्ति की राष्ट्रघात अथवा देशद्रोह कर रहल छथि. Are they really revolting against the country? Are they betrayers of the country, of the nation, Indian nation state? नहीं, कथमक नहीं, not at all. तखन मैथिली भाषा, संस्कृति व मिथिला प्रांतक मांग की राष्ट्रद्रोह भेल. In that case, is the demand for a separate Mithilaak state, or are the demands for the recognition of Maithili language and culture really going against the Indian unity? Not at all. So, AJ political stand, kind of political stand has been taken. This is very essential at that point of time to understand what exactly he was aiming at. And even in later life, I noticed that he was participating in the meetings of different political parties as advisors, as somebody who will talk about the space, the language, the connection between, or the lack of connection between religion and language. But everywhere, his point was support that party which supports the cause of Mithilaak. He was not talking about joining this party or going against that political party. Essentially, he was describing the point that one has to look at the commitment of the politicians of the region towards their own language literature. If there is no commitment, if the commitment only towards fulfilling some national needs within court, or to further the interest of a political party beyond the region, that is something which he was resenting against. That's something which he warned the people against. In fact, there is one other editorial, another particular issue of Mithila Darshan, where he says that the then Chief Minister of Bihar, Sri Babu, was trying to systematically eliminate a few political leaders from Congress party
so that they don't get tickets from Mithila area, although they are known supporters of Maithili language and literature. So beware of such moves by the politicians. It's a kind of, so there is a, it's not that he directly dabbled into politics, but he was politically active, sensitive, and was ready to take on the politicians. वो मैथिली के हेतु आंदोलन में अग्रसर रहा, जतेक जे उपलब्धि भेलै सब में हुनकर हाथ बहुत ऊपर छलनि। प्रबोध बाबू एहिमे जीवन समर्पित केने छलाह, परंतु हुनका मुँह से कतौ ई नहीं बहरेलनि जे ई हमर उपलब्धि थी कि हमर उपलब्धि थी। जखन मैथिली जगत में बहुत गोटे अपन अपन दावा लगा उपस्थित छथि जे हम ही ये केलहुँ हैं, हम ही ये केलहुँ हैं, एहन अभिमानहीन व्यक्ति बहुत कम छथि। ओ काज के काज बुझै छथिन, काज के कोनो ढोल नहीं बुझै छलखिन जे ओकरा पिटता। मैथिली में भाषा विज्ञान कोना लिखी, ओहि समय में हमरा पर भार आबि गेल छल, केओ लिखनिहार नहीं छलै, हम व्याकुल छलहुँ लिखब जे से कोनो मार्गदर्शन नहीं भेट रहल है, कोना लिखब। ओ मार्गदर्शन केलनि, ओ ततेक विशाल व्यक्तित्व हुनकर छलनि जे हुनका सामने में हम अपना के बड़ा तुच्छ जकाँ बुझै छलहुँ। ओ जखन अबै छलाह पटना, चारू कात से लोग हुनका पर आकृष्ट भऽ जाइ छल, जेना अद्भुत सुनबो की सकते रहनि, हम मुँहे तकैत रहि जाइ छलहुँ। एकटा बात हुनका में अद्भुत छलनि, ओ सार्वजनीनता, सार्व क्षेत्रीयता, एहिमे ओ ततेक लिप्त छलाह, ततेक व्यस्त छलाह जे हुनका कलम धऽ के किछु बहुत लिखबाक अवसर नहीं भेटनि। जँ हुनका कलम सँ किछु बहरैते तो मैथिली के बहुत भारतीय साहित्य के कहू बहुत लाभ होइते। मैथिली के आंदोलन में वो ततेक व्यस्त रहला जे शांतिपूर्वक जे एकटा लेखक, एकटा चिंतक लिखैत अछि से हुनका। A social organizer par excellence, Professor Prabodh Narayan Singh had always been at the forefront of the Maithili language movement. To further the cause of Maithili and create a social awakening among the educated and employed Maithils living in and around Kolkata, he set up the Akhil Bharatiya Mithila Sangh at Kolkata along with Babu Sahib Chaudhary and Devnarayan Jha. In the heyday of Maithili language movement, he went on to take up a coordinating role and set up the Akhil Bharatiya Maithili Mahasangh, an umbrella organization for numerous Maithili outfits. His frequent visits to different parts of Mithila and his fiery speeches, moving with a group of followers from village to village, is eulogized to this day. His home at Kolkata was a nucleus, a meeting place for numerous associations and cultural entities, a venue for poetry reading or staging a chamber theatre. It was frequented by many leading Maithili and Hindi writers such as Dinkar, Nagarjun, Subhadra Jha, Jayakant Mishra, to name a few. मैथिली आंदोलन के अग्रणी नेता छलाह हमरा लोकनिक श्रद्धेय प्रबोध बाबू। बेकार रही जे कोनो प्रोग्राम होय, जतौ मीटिंग होय, ताहिठाम जाय, हिनकर भाषण सुनी आ सबसँ जे अविस्मरणीय अनुभव अछि हमर हिनका प्रति से हिनके सुनलियनि भाषण दैत जे कलकत्ता विश्वविद्यालय में मैथिली छै, लेकिन विद्यार्थी नहीं होइत छै, तेँ कलकत्ता विश्वविद्यालय में पढ़ाई नहीं भऽ रहल छै। नाटक के रिहर्सल हमसब करैत छलियै, ताहिमे ओ बैस कऽ देखै छलखिन। कतहु यदि अभिनय में या भाषा के उच्चारण में असुविधा होइतै तो प्रबोध बाबू के एक एकटा महीन से महीन बात पर ध्यान रहै छलनि, ओकर ओ निर्देशन दै छलखिन, कहै छलखिन सबके। आंदोलन में अद्भुत व्यक्तित्व छलनि हुनकर। एहिठाम मातृभाषा आंदोलनक प्रबल समर्थक जे दृष्टांत के रूप में एज फॉर एग्जाम्पल राखल जा सकैए, तेहन ओ आंदोलनी छलाह। तकर मतलब आइ काल्हि जे होइत छै जे आन भाषा से विरोध नहीं, भाषा हमेशा सेतु के काज करै छै, दीवार नहीं छै, बाँटै नहीं छै, जोड़ै छै। आ इएह चीज प्रबोध बाबू हमरा सबके सिखौने छथि। मिथिला राज्यक प्रबल समर्थक छलाह। 54 में जहन एहिठाम 53 में गिरीश पार्क में विराट आंदोलन भेल रहे, हमसब ओतऽसँ धर्मतल्ला तक जुलूस बाहर केने रही। तकर अगुआ नेता छलाह प्रबोध बाबू। भाषाधार प्रांतक निर्माण हो
ताहि लेल साहित्य अकेडमी में जे मैथिली के प्रवेश भेलै तकर बृहत्तर श्रेय जाइ छनि प्रबोध बाबू के। 54 में जे राइटर्स कॉन्फ्रेंस एहिठाम भेल रहे, प्रोफेसर हुमायूं कबीर रहथिन ओकर सर्वे सर्वा, नेहरू जी आयल रहथिन ओकर उद्घाटन करक लेल। आ मैथिली जेहेतु संविधान में नहीं रहे तैँ ओकरा इन्वाइट नहीं कयल गेल रहे। ई कृतित्व प्रबोधे बाबू के जाइ छनि। हुनका संगे पंडित देवनारायण झा, बाबू साहेब चौधरी रहथिन। हुमायूं कबीर से भेंट कऽ कऽ बुद्धदेव बोसक सहयोग से 3टा मैथिलीक प्रतिनिधि के आमंत्रित कयल गेलै। तकर बादे साहित्य अकेडमी में मैथिली के प्रवेश भेलै। ओकरो माने मीलक पाथर के रूप में जे कोनो मैथिली के आइ तक उपलब्ध भेलैए ओकरा पाछा घुमि कऽ देखै छियै तऽ ओहि जड़ि में कतौ न कतौ प्रबोध बाबू अवस्थित छथि। मैथिली के सबसँ पैघ आलोचक जिनका मानल जाइ छनि प्रोफेसर रमानाथ झा कहने छथिन जे कलकत्ता मैथिलक लेल फॉर मैथिली स्पीकिंग पीपुल्स तीर्थ स्थान छै। ततेक काज कलकत्ता से मैथिली के लेल भेल छै समकालीन रंगमंचक विकास में। आ से रंगमंचक विकासों में यदि मूल में जाए तो स्तंभ रूप में हमरा प्रबोध बाबू भेटता। आ कलकत्ता में जे मैथिली नाटक के लेखन शुरू भेलै तकर आदि पुरुष थिका प्रबोध बाबू। मिथिला मैथिलीक सर्वांगीण विकासक हेतु वो सब दिन एहि अहर्निश प्रयत्नशील रहला। देश स्वतंत्र भेला पर केंद्रीय सरकार भाषाधार प्रांतक निर्माणक हेतु अपन एक कमीशन बनेलक, जाहि कमीशन के समक्ष मैथिलीक दिस से कलकत्ता में बाबू प्रबोध नारायण सिंह हुनका साक्षात कयलनि, हुनका स्मार पत्र देलखिन। लेकिन आयोग, भाषाधार आयोग एते पैघ बेईमान निकलल जे ओ कतौ चर्चा तक नहीं केलकै जे मैथिलीक वास्ते सेहो हमरा स्मार पत्र भेटल और ओकर विवेचन करलाक बाद हम ओकरा नकारि देलहुँ। तऽ एहिसँ पैघ अन्याय मैथिली चाहे मिथिलाक प्रति नहीं भए सकैत छै जे प्रबोध बाबू मिथिला दर्शनक संपादकीक माध्यमसँ समस्त मिथिला समुदायक समक्ष प्रस्तुत कयलनि। मिथिला राज्य आंदोलन सर्वप्रथम कलकत्ता में शुरू भेल। ओहिमे डॉक्टर लक्ष्मण झा, लक्ष्मी नारायण सिंह, प्रबोध नारायण सिंह, बाबू साहेब चौधरी, देवनारायण झा और अन्य लोग सक्रिय भूमिका में छलाह। ओहिमे प्रोसेसन सेहो निकालल गेल आ प्रोसेसन खूब जबरदस्त रहल। ग्रीस पार्क में जाकर मीटिंग भेल, ओहो मीटिंग अद्भुत रहल। और ओहि समय के जते पत्र पत्रिका छलै से एहि विषय के खूब जोर से लेलक और मिथिला राज्य आंदोलन के नींव वही दिन कलकत्ता में पड़ल, जकरा सब दिन, जकर झंडा सब दिन प्रबोध नारायण सिंह ओकरा लऽ कऽ चलैत रहला। और वएहटा एकटा मात्र रहि गेलनि जे हुनका पूरा नहीं भेल छनि, नहीं तऽ वो जतेक आंदोलन कयलनि मिथिला मैथिली के सबटा हुनका पूरा भऽ चुकल छनि। कलकत्ताक महाराज सदन बनले छल, नेहरू जी को तऽ प्रोग्राम भेलनि, सब भाषाक प्रतिनिधि के आवाहन निमंत्रण देल गेल छलै। मैथिली ओहिमे छूटल छल। प्रबोध नारायण सिंह अपन सत प्रयास से ओहिमे मैथिलीक नाम देलनि और मैथिली के हेतु वो 3 व्यक्ति के वही मीटिंग में से वक्ता के रूप में राखल गया। लेकिन आपस की लड़ाई, आपस का झगड़ा, किसी का स्वार्थ, सब मिला के बराबर ये हुआ कि इस भाषा को दबा कर रखा गया। अब सौभाग्य से इस साल 8वीं अनुसूची में मैथिली का स्थान दिया गया और इससे कम से कम इनकी मृत्यु से पहले, यद्यपि जानकर नहीं गए, समझ कर नहीं गए, लेकिन फिर भी 8वीं अनुसूची में इसको स्थान मिला। ये बहुत बड़ी बात हुई हमारे लिए भी, उनके लिए भी। और हमारे इनकी जो एक विशेषता थी वो है कि हिंदी तो खैर जानते ही थे, अपने गांव की बोली मैथिली वे बोलते ही थे, लेकिन यहाँ जब आए हैं उस समय वे बंगला बोलना नहीं जानते थे। यहाँ तक कि मैंने हंसने वाली बात होगी,
किसी दुकान में जाके किसी चीज़ को खरीदने के लिए जब पूछते थे कि इसका दाम क्या है, इसकी कीमत क्या है, तो कहते थे यार मूल्य को तो, ठीक इसी तरह बोला करते थे। उसके बाद वही आदमी धीरे धीरे बोलते बोलते पूरी तरह से बांग्ला को उन्होंने अपने अधिकार में ले लिया। तो इन्होंने भी इसी तरह बांग्ला सीखी, हमने इसी तरह मैथिली सीखी। और इनकी दूसरी भाषाओं में जैसे कहा गया था कि फ्रेंच सीखने के लिए पागल थे, पर्शियन सीखने के लिए पागल थे, और पर्शियन सिखाने के लिए रात सवेरे ईरान सोसाइटी से कुद्दुस साहब आते थे और उनसे वे सीखते थे। और हमारे यहाँ पर फ्रेंच सीखने के लिए हितवंश गयाधर नाम के एक व्यक्ति आते थे, जिनको वे हिंदी सिखाते थे और उनसे वे फ्रेंच सीखते थे। Professor Prabodh Narayan Singh was building this house when I met him first through an advertisement in the paper. He had put an advertisement that he wanted to learn French in exchange of Hindi. So at that time I had just come to Calcutta and I wanted to learn both Hindi and Bangla because we were getting ideas about Hindi literature, Bengali literature. In fact, I read a lot about Bengali literature in English. So I wanted to learn Bengali and Hindi. So when I saw this advertisement, immediately I came to this house. Within half an hour reading this thing, I came to his house. We had a discussion and it looked as if we were made for each other. Mutual agreement was so good that it lasted for many years. I did with his help a lot of translation from Hindi and Bangla to French to be published in some French papers. He was a very dynamic person. He had some sort of magnetism about him that once he gets hold of you, he will not leave you. আমার মতন একটা ক্ষুদ্র লোকের পক্ষে এত বড় মাপের একজন লোকের বিষয়ে বলা মানে মনে হয় যে পারবো কি না ঠিক নেই। তো যতটুকু পারি একটু বলতে চেষ্টা করি যে আমার জীবনের মাধ্যমে আমি ওকে কীরকম দেখলাম। আমাদের পরিচয়টা হয়েছিল অনেক মানে প্রায় 54-55 বছর আগে। উনিও তখন ছাত্র ছিলেন ইউনিভার্সিটির হিন্দির, এবং ওনার সঙ্গেই আমার দিদিও পড়তেন একই সঙ্গে। আর দুজনের মধ্যে একরকম কম্পিটিশানই ছিল ফার্স্ট সেকেন্ডের নিয়ে এইরকম। যাই হোক, তো সেই সময় একদিন আমি ইউনিভার্সিটি গেলাম, আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন আর আমাকে বললেন যে কি সায়েন্স করো, সায়েন্স দিয়ে কী হবে, হ্যাঁ তুমি তো হিন্দি ভালোই বলতে পারো, তো এটা হিন্দিতে একটা গল্প লেখো, তো বসে বসে এখন চেষ্টা করো। আমাকে একটা রুমে বসিয়ে দিলেন একটা কাগজ পেন্সিল দিয়ে, আর সেই আমার হাতে খড়ি আর মানে হিন্দিতে প্রথম লেখা। এই কী করে ওনার কতগুলো মারওয়াড়ি পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক হলো, মানে কীরকম যে ফিনান্সিয়াল ক্রাইসিস হয়েছে হ্যাঁ এক পরিবারে মারওয়াড়িদের মধ্যেই, তারা এসে পর্যন্ত ওনার কাছে অ্যাডভাইস চাইতেন। আর তখনই উনি দেখলেন যে এদেরকে তো মোল্ড করা দরকার, এরা খালি টাকা 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 করে, এদেরকে মোল্ড করা দরকার। তখনই ছেলেদেরকে, ওদের যে বাড়ির ইয়াং ছেলেদেরকে সব ওদের সঙ্গে কথা বলতেন, আর কথা বলে বলে ওদেরকে মানে বাধ্য করালেন একরকম যে লেখাপড়া একটা কম্পালসারি জিনিস হ্যাঁ ভবিষ্যতের জন্যে, এইটুকু ওদের ভেতরে ঢোকাবার চেষ্টা করলেন। এবং সত্যি একের পর এক পরিবার আমি বছরের পর বছর দেখলাম কীভাবে ঢুকে ঢুকে উনি হ্যাঁ পরিবারটাকে একেবারে হিপনোটাইজ করে ফেলেছেন এইরকম।
অদ্ভুত ছিল, মানে যে সাবজেক্টের সঙ্গে কোনো রকম সম্পর্ক নেই সেইটে 2 ঘন্টা পড়ে না পড়াতে বসে গেলেন। আর আমি অবাক হইতে দেখতাম যে লোকটা কি জানে না, এই রকম অদ্ভুত ছিল। মানে সেই ইয়েতে আর কি আমাদেরকেও উনি মোল্ড করেছেন অনেক, যেহেতু আমারও তো ওই বিজ্ঞান ভিত্তিক যেটা আকর্ষণটা অন্তত ভেতরে ছিল, সেইটার থেকে এরকমভাবে পরিবর্তিত হয়ে আমি হিন্দিতে এলাম। তো তার জন্যে আমাকেও অনেক রকমভাবেই শিখতে হলো ওর কাছ থেকে অনেক জিনিস। এমন পাণ্ডিত্য আমি দেখিনি। Professor Prabodh Narayan Singh had also set up Lok Sahitya Parishad, an organization devoted to folklore studies of Mithila. He was on the advisory board of the Sahitya Academy, New Delhi, and also associated with Maithili Academy, Patna, Rajendra Chhatra Bhavan, Calcutta, Hanuman Mandir Sahitya Nyas, Calcutta, and was an active member of the Asiatic Society of Bengal, the Iran Society, the Linguistic Society of India, and the Philological Society of Calcutta. He served as a board member of the Patna, Bhagalpur, Magad and Mithila universities in Bihar. एकमात्र डॉक्टर प्रबोध नारायण सिंह ऐसे थे कि जिन्होंने मुझे बहुत आश्वासन दिया और कहा कि तुम्हें किसी भी चीज़ की समस्या नहीं होगी, और उन्होंने मुझे हनुमान मंदिर आने के लिए कहा। मैं हनुमान मंदिर गई और मैंने वहाँ देखा कलकत्ता विश्वविद्यालय से जो प्राइवेटली एमए हिंदी के लिए अपीयर होते थे, उन्हें एक विशेष तरह की सुविधा मिलती थी, निःशुल्क एक गाइडेंस उनको मिला करती थी। मुझे लगा कि ये बहुत बड़ी सेवा है। हनुमान मंदिर में रविवार को एमए के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करना ये बहुत महत्वपूर्ण कदम था, जो मैंने अपने जीवन में किसी शहर, किसी नगर, किसी गांव में ऐसी शिक्षा की व्यवस्था नहीं देखी। डॉक्टर प्रबोध नारायण सिंह के संपर्क ने हमेशा यह जिजीविषा, यह इच्छा, यह प्यास मुझ में जगाई कि तुम भी आगे बढ़ सकती हो। विवाह के दौरान एक गृहिणी बन जाने के बावजूद मैं उनसे मिलती रहती थी, और यह संस्पर्श, यह उनका पारस स्पर्श मुझ जैसे लोहे को उन्होंने सोना बना दिया। जो बात प्रबोध बाबू में थी वह सब जो प्रभावित करती थी कि मीठी बात, मधुर बात बहुत सहज सरल ढंग से कहते हुए, तर्क का इतना बल होता था उनके कथन में, उनके बोलने में, कि जो विरोधी होते थे वे भी किस प्रकार हथियार डाल देते थे उनके सामने में। जो उनसे मतभेद रखते थे वो भी उनके सामने में जैसे नतमस्तक हो जाते थे। कविता की पंक्ति है, मैं नहीं आया तुम्हारे द्वार, पथ ही मुड़ गया था। तो जैसे रास्ते को ही मोड़ देते थे और अनुकूल ठिकाने पर उस रास्ते को पहुंचा देते थे। जब वे पढ़ाते थे तो एक ही नज़र में भांप लेते थे कि श्रोता या विद्यार्थी कि उनका स्तर क्या है, क्या किस स्तर से की बात वे समझ सकते हैं, और उसी स्तर तक वह ले जाते थे। ऐसा उनका तरीका था, एक बहुत ही प्रभावशाली तरीका था जो हमें अभिभूत कर देता था। मैथिली, संस्कृत, फारसी, हिंदी, बंगला अनेक भाषाओं का विद्वान होकर भी वे इतने सरल और सहज थे कि किस प्रकार विश्वास नहीं होता था। कई लोग जो नहीं जानते थे कि ये वही व्यक्ति हैं। एक बार एक आयोजन में मुझे याद है दरभंगा गए हुए थे, प्रबोध बाबू आए हैं, यूनिवर्सिटी में चर्चा का विषय बन गया था। सारे लोग दौड़ने उमड़े उधर देखने के लिए प्रबोध बाबू हैं। तो एक सज्जन वहीं के थे, मिथिला का पाग आदि लगाए हुए, लोग समझ रहे थे कि वही प्रबोध बाबू हैं, जबकि बाद में पता चला कि नहीं, वो जो सरल सहज सीधे से दिखने वाले कुर्ता धोती में लिपटे हुए जो सरल इंसान हैं प्रबोध बाबू वो हैं। तब फिर वो मुड़कर उनकी ओर चले आए। इस तरह से वे कई तरह से प्रेरित, प्रभावित किया करते थे, तो सबको वे साथ लेकर चलना चाहते थे। मैं 5-6 भाई बहन हूँ, सबको बहुत प्यार करते थे और मुझे बहुत मार लगती थी अक्सर किसी न किसी कारण से। मेरी दादी
एक बार आई यहाँ, देखा कि बहुत इसको मार लगती है, तो यहाँ से कलकत्ता गई और बोली बाबूजी को, मैंने प्रबोध बाबू को, कि तुम उसको यहाँ ले आओ, वहाँ उसको कोई बचने नहीं देगा, इतना मैंने इतनी उसको मार लगती है वहाँ पे। उसके बाद बाबूजी यहाँ आए, बाबूजी के साथ मैं कलकत्ता गया और वहाँ क्लास 5 में उन्होंने मेरा एडमिशन करा दिया और वहाँ मैं स्कूल की पढ़ाई मैंने वहीं से पूरी की। उसी दरमियान मैंने उनको टाइम कम मिलता था, मैंने समय पूरा वो नहीं दे पाते थे, लेकिन कभी कभी औचक निरीक्षण एक तरह से होता था। अचानक जिस दिन फुर्सत है, संडे है, उस दिन बुलाते थे और पूछते थे आजकल क्या पढ़ रहे हो, क्या सब अपनी कॉपी लाओ, किताब लाओ, और उससे कहीं से उठा के कुछ भी पूछते थे। स्वाभाविक है, सब कुछ तो तैयार रहता नहीं था, याद रहता नहीं था, उसके चलते मैंने पनिशमेंट मिलता था कि ये पूरा 10 श्लोक 1 घंटे में याद करके सुनाओ, या रोज़ 20 पन्ना अंग्रेजी और 20 पन्ना हिंदी तुम लिख के दिखाओ। मैंने दिन भर में मुझे 40 पेज हैंडराइटिंग लिखना पड़ता था रेगुलर डेट वाइज, लेकिन कभी वो देखते नहीं थे। अचानक 1 महीने के बाद कहते थे कि जो लिखे हो सब लेके आओ। तो जब 10 दिन लिखता था और उसके बाद लगता था कि अब वो नहीं देख रहे हैं, नहीं पूछ रहे हैं, तो छोड़ देता था। और वो अचानक 15 दिन के बाद या 1 महीना के बाद कहते थे कि जितना लिखा है सब ले आओ मेरे पास, और उसमें फिर मैं पकड़ा जाता था, फिर मैंने उनसे डांट लगती थी। और वाजिब है, विद्वान आदमी थे, समझदार आदमी थे, बहुत कुछ उन्होंने बताया, बहुत कुछ सिखाया। उनके सानिध्य में आज मैं जो हूँ, जैसा हूँ, सब उन्हीं की देन है। हुनका जे नौकरानी सेवा करे रहे जहिया भाईजी छोट रहथिन, एक यात्रा के दरमियान जे एलखिन, हुनका जानकारी भेले जे बच्चा में हमरा नौकरानी पाले रहे से बीमार भेले, तो यहाँ से कुछ दूरी पर वो पैदलो चल के ओकरा से गेलखिन भेंट करे ला। बेचारी छोटा वाला मरे के रहे, छोटा कोटिया टाइप के, वही में बीमार अवस्था में रहे, तो ओकरा कपड़ा उपड़ा तो देबे कलखिन, वही बिछौना पर बैठ गेलखिन। तो वो कहलकै कि जे नुनू तोहर साफ कपड़ा छ, हम बीमार आदमी छै, एहि बिछौना पर तू नहीं बैठ। तो कहलखिन बच्चा में तो हम जो पर पैखाना करे रहिए तो तू ओते बढ़िया से घृणा नहीं करे रही, चाहे तोहर बिछौना से हम क्या घृणा करबो। लास्ट भूलो मन तो भयंकर है। हमारे चचेरे भाई की बेटी की शादी थी, सॉल्ट लेक में शादी हो रही थी। ये गए, मेरा जाना अब क्यों नहीं हुआ था मुझे याद नहीं है, लेकिन उसके बाद रात 12, 1, 1:30, 2 कहीं नहीं है पेंसिंग। और ये पता चल रहा है कि हमारी बहन बेटी उनको छोड़ के गई है, ऐसी जगह पर छोड़ के गई है कि वो अपना घर चले आएंगे। लेकिन हमको लगता है कि उसी समय से उनकी ये बीमारी हुई है। डॉक्टर प्रबोध नारायण सिंह द्वारा प्रोफेसर हरिमोहन झा जी संग कैल साक्षात्कार वार्ता। बहुत दिन से अपने दर्शन करबाक इच्छा छल, किंतु सुविधा नहीं भऽ रहल छल। आइ अपने को ठाम हम एक विशेष प्रयोजन आयल छी। वो प्रयोजन अछि जे अपने बहुत दीर्घकाल से मिथिला और मिथिला गौरव पर चिंतन कैल, अपने दर्शन शास्त्र, भाषा शास्त्र, संगीत शास्त्र, छंद शास्त्र बहुत विषय पर अन्वेषण कैल। तो हमरा किछु ई शंका अछि जे उर्दू के वा कहल जाओ कि अरबी फारसी के छंद के प्रभाव लोग कहै छै जे मैथिली छंद पर सेहो पड़ल। हमरा अपना मन में शंका अछि, किया तऽ फारसी के छै पद्धति वजन के और काफिया के, हुनका सबके फाइलातुन वा मुफ्तएलुन एहि प्रकार से वजन पर छंद निर्धारण करै छै। हमरा सबक छंद अछि मात्रावृत्त, तालवृत्त और वर्णवृत्त। तो एकरा साथ की ओहि सबक तालमेल बैस सकै छै? बिल्कुल एकदम। अपना ओहिठामक जे पिंगल अइ आ जते शास्त्रीय ओकर विवेचना छै, जते भेद प्रभेद छै, सबटा समाहार भऽ जायत अपने। देखो प्रबोध बाबू, बहुत अहाँके प्रति एतेक प्रेम, एते स्नेह है अहाँके मैथिली स्वाद देख कर, जे ई मैथिली छंदशास्त्र, मैथिली फोनेटिक्स, मैथिली व्याकरण, मैथिली साहित्य आ समर्पित व्यक्ति अहाँ लोकनि छी। संपूर्ण परिवार, अहाँ पत्नी, अहाँ कन्या, अहाँ पुत्र, हाँ, ई तो बहुत खूब आशीर्वाद। Prabodh Narayan Singh inspired and brought many young writers and scholars into the Maithili literary fold, persuading them to express themselves in their fertile and rich native Maithili.
a charismatic leader and mentor, he personally groomed and encouraged, indeed fought, to educate many young people wherever he went. The work that Prabodh Narayan Singh started in his lifetime has changed untold lives. Lives of students, scholars, literators, as well as common people. Most importantly, it has given a new direction to development of the Maithili language, a new hope for the people of Mithila. Prabodh Babu's lifelong contribution to the development of Maithili is enduring, transcending time and space. Prabodh Babu was a charismatic and wonderfully inspiring personality during his lifetime, and continues to be so even after he has passed on.